बच्चों अब हम शुरू कर रहे हैं बफर कैपेसिटी। तो हेडिंग दीजिएगा, हेडिंग देंगे बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी हाँ, इसमें नोट करेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज the amount of strong acid. It is defined as the amount of strong acid or the strong base. Amount of strong acid or the strong base required to change the pH of the buffer solution, to change the pH of the buffer solution by 1 unit, आगे नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, द बफर कैपेसिटी ऑफ अ बफर, द बफर कैपेसिटी ऑफ अ बफर इज मैक्सिमम when the concentration of acid or base, when the concentration of acid or base is equal to the concentration of the salt, is equal to the concentration of the salt. Concentration of the acid or the base, it is equal to the concentration of the salt. That is the buffer capacity is maximum. That is the buffer capacity is maximum when the pH is equal to pKa or the pOH it is equal to pKb. pH is equal to pKa. तो ये कब होगा pH is equal to pKa? अगर हम बात करें एसिडिक बफर की, तो एसिडिक बफर में आप कहते हैं pH is equal to pKa plus log of the concentration of the salt upon the concentration of acid. राइट तो मैंने क्या लिखवाया है, आपने लिखा है कि बफर कैपेसिटी मैक्सिमम तब होगी जिस समय जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है इट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। और जब सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन बराबर बराबर होगा तब उस सिचुएशन के अंदर pH इज इक्वल टू pK होगा। उसी तरीके से pOH इज इक्वल टू pKb कब होगा, pOH इज इक्वल टू pKb तब होगा when the concentration of the salt it is equal to the concentration of the base. राइट क्योंकि ये एसिडिक बफर के लिए है एंड दिस इज फॉर द बेसिक बफर। राइट आगे लिखेंगे मैथमेटिकली the buffer capacity is equal to the number of moles of acid or base, number of moles of acid or base added in 1 liter of a buffer solution, added in 1 liter of buffer solution upon
upon the change in the pH of the solution. Buffer capacity is equal to the number of moles of acid or base added in 1 liter of buffer solution upon the change in the pH of the solution, upon the delta pH. Delta pH represents the change in the pH of the solution, represents the change in the pH of the solution. राइट अब ये जो इतनी बातें आपने लिखी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं. राइट डाउन वन क्वेश्चन. इन 1 liter of a buffer solution, in 1 liter of a buffer solution of acetic acid and sodium acetate, acetic acid and sodium acetate both having concentration of 1 mole per liter, both having concentration of 1 mole per liter is added with 1 mole per liter is added with 0.1 moles of HCl, is added with 0.1 moles of HCl. Calculate the change in the pH. Calculate the change in the pH of the solution. Change in the pH of the solution, and also calculate the buffer capacity. Given the Ka of acetic acid, CH3COH, it is equal to 2 into 10 raised to the power minus 5 mole per liter. राइट एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें आप. बिल्कुल ध्यान से पढ़ें आप. राइट अब यहां पर कैसे करेंगे देखिएगा. एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह दोनों मिलकर एसिडिक बफर बनाते हैं, और एसिडिक बफर में हम कहते हैं pH is equal to pKa plus log of the concentration of the sodium acetate upon the concentration of acetic acid. राइट अब यहां पर K वैल्यू एसिटिक एसिड की दे रखी है, तो पहले मैं पीके पता कर लेता हूं. पीके आ जाएगा मेरा, इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ K, दैट इज नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ 2 into 10 raised to the power minus 5, दैट इज इक्वल टू 4.7. ये 4.7 रहेगा. तो मैं बोलूंगा pH इज इक्वल टू इनिशियल pH. ये मैंने आई लगा दिया है यहां पर, आई मतलब इनिशियल. सो द इनिशियल pH इट इज इक्वल टू 4.7 प्लस लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम एसीटेट. आपको दे रखा है कि 1 मोल पर लीटर दोनों का कंसंट्रेशन है. इट मींस लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 हो जाएगा.
right, that is the initial pH, it is equal to 4.7. log 1 0 होता है, ये हमारा इनिशियल pH आ चुका है. दिस इज द इनिशियल pH. अब आपने क्या किया, अब बात आगे बढ़ती है कि जो हमारे पास 1 लीटर था, 1 लीटर जो हमारे पास बफर सॉल्यूशन था, उस 1 लीटर बफर सॉल्यूशन के अंदर आपने 0.1 मोल HCl के डाल दिए. तो जिस समय आप 0.1 मोल HCl के डालेंगे तो सोडियम एसीटेट उसके साथ रिएक्ट करेगा. CH3 COONA, जो आपने HCl डाला उस HCl के साथ रिएक्ट कर कर एसिटिक एसिड प्लस NaCl का फॉर्मेशन करेगा. जो आपने HCl डाला था वह HCl सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्ट करेगा, गिविंग एसिटिक एसिड प्लस HCl. राइट. सोडियम एसीटेट के इनिशियली जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, भाई हमारे पास 1 लीटर है, 1 लीटर आपके पास बफर था और उसमें कंसंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर एंड 1 मोल पर लीटर. राइट. इसका मतलब यह हुआ कि जो सोडियम एसीटेट है वह सोडियम एसीटेट के इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स 1 है. राइट. और एसिटिक एसिड के भी इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स 1 है. भाई दोनों का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, दोनों का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, और जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है वो 1 लीटर है. इट मींस ये भी 1 मोल पर लीटर और ये भी 1 मोल पर लीटर, मतलब 1 मोल प्रेजेंट है. राइट. सोडियम एसीटेट का भी 1 मोल है और जो एसिटिक एसिड है उसका भी 1 मोल प्रेजेंट है. अब आपने HCl डाला, तो जब आप HCl डालेंगे, HCl के 0.1 मोल आपने डाल दिए, तो HCl के जब आप 0.1 मोल डालेंगे, राइट, तो ये 1 माइनस 0.1, मतलब जब सोडियम एसीटेट रिएक्ट करेगा तो ये बच जाएगा 0.9. राइट. 1 माइनस 0.1. एक काम करो, अभी आप ऐसे लिखिए 1 माइनस 0.1. माइनस 0.1 और वहां पर एसिटिक एसिड बनेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.1. समझ गए होंगे मेरी बात को. इट मींस अगर ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9 और ये हो जाएगा 1.1. इसका मतलब जब आप HCl को डालेंगे, तो जिस समय आप HCl को डालेंगे तो एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा. एसिटिक एसिड का पहले कंसंट्रेशन था 1 मोल पर लीटर, और अब आप चेक करिए कि एसिटिक एसिड का अब कंसंट्रेशन हो चुका है 1.1 मोल पर लीटर. एसिटिक एसिड का अब जो कंसंट्रेशन हो चुका है दैट इज 1.1 मोल पर लीटर. राइट. अब यहां पर हम क्या करेंगे, पीएच आपको निकालना है. इट मींस मैं बोलूंगा फाइनल पीएच इट इज इक्वल टू pKa, क्योंकि Ka कांस्टेंट है, इसका मतलब pK कांस्टेंट रहेगा. तो pK की जो वैल्यू है दैट इज 4.7, ये 4.7 प्लस लॉग ऑफ सोडियम एसीटेट रहा है 0.9 अपॉन 1.1. राइट. और ये जो था इनिशियल पीएच इट इज इक्वल टू 4.7. इट मींस द फाइनल पीएच इट इज इक्वल टू 4.7 की जगह पर मैं इनिशियल पीएच रख सकता हूं. इट मींस यहां पर मैंने रख दिया PHI प्लस लॉग ऑफ 9 अपॉन 11. राइट. और पीएच फाइनल माइनस इनिशियल पीएच, मतलब ये हो जाएगा चेंज इन पीएच. भाई फाइनल पीएच माइनस इनिशियल पीएच जो है वो आपका चेंज इन पीएच आ जाएगा. इट मींस मैं बोलूंगा डेल्टा पीएच इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ 9 अपॉन 11. राइट. ये बात जरूर है कि ये नेगेटिव में मिलेगा आपको, क्योंकि 9 छोटा है 11 के मुकाबले. राइट. इसका मतलब जो लॉग की वैल्यू मिलेगी वो लॉग की वैल्यू नेगेटिव में होगी. बट हमारे को नेगेटिव या पॉजिटिव से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ चेंज प्रेडिक्ट करना है. आपको जो है वो सिर्फ चेंज प्रेडिक्ट करना है. तो जो चेंज इन पीएच हमारे को मिला है दैट चेंज इन पीएच इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ 9 अपॉन 11. समझ गए होंगे मेरी बात को. log of 9 upon 11 it represents the change in the pH. ठीक. अब यहां पर आपको बफर कैपेसिटी भी निकालनी थी.
तो मैं बोलूंगा बफर कैपेसिटी इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड इन 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो अब यहां पर बफर कैपेसिटी निकालते वक्त बफर कैपेसिटी इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड। तो यहां पर आपने HCl के 0.1 मोल डाले थे, 0.1 मोल डाले थे आपने, राइट, 1 लीटर के अंदर। तो 0.1 अपॉन द चेंज इन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन द डेल्टा पीएच, राइट। तो ये हो जाएगा 0.1 अपॉन द चेंज इन द पीएच। चेंज इन द पीएच आ जाएगा हमारा log ऑफ 9/11। जो चेंज इन पीएच था वो log ऑफ 9/11 आ जाएगा, राइट। वही आपका आंसर आ जाएगा। तो बफर कैपेसिटी भी आपने पता कर ली और चेंज इन पीएच भी आपने पता कर लिया। ठीक, एक बार आप चेक कर लीजिए, राइट। मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, नोट करेंगे, इन 500 ml of an aqueous solution of ammonium hydroxide and ammonium chloride. Ammonium hydroxide and ammonium chloride both having concentration of 1 mole per liter. 1 mole per liter is added with 1 mole per liter is added with 0.08 moles of NaOH is added with 0.08 moles of NaOH. Right? Calculate the change in the pH of the solution. Calculate the change in the pH of the solution and also calculate the buffer capacity. Right, given the Kb of ammonium hydroxide, it is equal to 2 into 10 raised to the power minus 5. The Kb of ammonium hydroxide, it is equal to 2 into 10 raised to the power minus 5 मोल पर लीटर, राइट। जरा आप ट्राई करें